WhatsApp ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ WhatsApp ਦਾ ਸਰਵਰ ਰਿਹਾ ਠੱਪ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅੱਡਾ। ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਲੋਡ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਨੂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ AK-47। ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੇਡ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਕਵਰੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਐਮ। ਬੋਲੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਣ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੇਣ ਮੌਕਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ। ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੁਬਕੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਤਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਗੋਲ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਘਟਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਡੁਬਕੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾत करने के लिए साथ जुड़ रहे हैं पंडित सुभाष शर्मा। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस दिन की जेकर असी गल करिए पंडित जी, मानता की गल करिए, सूरज ग्रहण किस तरीके इसनू समझा जाए धार्मिक पद्धर ते और लोगों को अज दे दिन की करना चाहिए पंडित जी? नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको दीपावली की शुभ बधाई। अजे 5 दिवसीय जो प्रोग्राम चलता है साढ़े दिवाली तो 2 दिन पहला धनतेरस तो 14 तो ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਵਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹਵਨ ਯੱਗ केवल दान पुण्य ही कर सकते हैं। गंगा का स्नान जिदा कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, पिहोवा आदि तीर्थों से जाके दान पुण्य कर सकते हैं। और खास करके
ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਵਾੜ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੂਤਕ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਬੰਦਨ ਕਰਕੇ ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ 4:23 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:40 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 6:52 ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਿੱਤਿਆ ਹਿਰਦੇ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਾਠ, ਲਾਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੇਹੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਸਿਲਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੌਣ ਨਾ, ਲੇਟਣ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਹਿਰਦੇ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਲਾਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ और कुछ नहीं है। और दान पुण्य करके जितना कोई ले गया है, कोई अपने कुरुक्षेत्र गया है, कोई हरिद्वार। जी पंडित जी, एक सवाल ये है कि अज दा दिन ये सूरज ग्रहण का जिहड़ा वक्त हुंदा है, इस दौरान सिर्फ दान पुण्य ही क्यों, पूजा पाठ क्यों नहीं किया जाता ते सिर्फ दान पुण्य क्यों किया जाता है? इसके पिछे की वजह हैगी है ताकि लोगों को समझ आवे कि असल दे विच पूजा पाठ क्यों नहीं करते इस वेले और सिर्फ दान पुण्य क्यों किया जाता? देखिए, सूतक से लेकर के और जरा पूरा ग्रहण तक हैगा, उत्थे तक असी मूर्ति का स्पर्श और दर्शन नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, धूपबत्ती नहीं करते। दूसरा पूजा तुझी करो, अदित्य हृदय स्तोत्र वो असी कर सकते हैं, सूर्य अष्टक का मंत्र कर सकते हैं। अब रही दान का महत्व रहा हैगा कि सारिया मस्यां का दान किया गया और ग्रहण के टाइम का दान किया गया बराबर होता है। कोई बहुत ही बड़ा कोई मरीज हैगा, पेशेंट है, हैंडीकैप्ड है, जिन्होंने पैरालाइज होया, उसका तुला दान किया जाए अकॉर्डिंग टू वेट गेहूं दे और गुड़ दे नाल, तो उहदे मैं कह सकदा कि उहदी 80% रोग जिहड़ा हैगा वो खत्म होएगा सूर्य दे दान दे नाल। सूर्य ग्रहण ते चंद्र ग्रहण दा दान कीता होया बाकियां नालों बखबड़ेवा करके देखिए तो लखां गुणा करो ज्यादा वो फल दिंदा हैगा रोग वास्ते, निवृत्ति वास्ते। और इस टाइम जिहड़ा पूजा पाठ किया जाता है, दान कीता पूजा पाठ है, कोई मंत्र का उच्चारण करता, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है घर बैठ के, या कोई हनुमान चालीसा किसी प्रकार की कोई पूजा आराधना अर्चना कर रहा है, पूजा आराधना अर्चना कर से सिर्फ धूपबत्ती नहीं करते हैं, मूर्ति दर्शन नहीं करते, मूर्ति स्पर्श नहीं करते। इसी तरह सवेर तो साडे कबाड़ बंद है मंदिरों के, सूरज तो खत्म अपना सूर्य ग्रहण खत्म होएगा, उस वेले जिसले साडा सूरज छिप जाएगा तो उस तो बाद मंदिरों के कबाड़ खोल के कपड़े बदल के भगवान के ठाकरे का द्वारा फिर स्नान करके आरती बंदन किया जाएगा शाम को। पंडित जी, एक सवाल ये कि ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ कोई बदलाव जिहड़ा हैगा आया वक्त के नाल नाल? समय वही है, काम वही है, तरीका उन्होंने बदलिया होया है। तरीका इस तरह बदलिया होया जिस तरह पहला आपां काफ़ी समय का परहेज करते सीगे, सवेर तो लैके शाम तक कोई भी फंक्शन आंदा सी, बार त्यौहार कत्तक महीना हैगा, साढ़े 32 दिन का दिन 30-32 दिन दे विच साढ़े बहुत त्यौहार आंदे, 30-32 त्यौहार आंदे, दिवाली आ जाती है, होर गोपाष्टमी आदि इत्यादि वगैरह, पूर्णमाशियां 2 आ जांदियां। ते इहदे विच शुरू जिद्दन पूर्णमाशी होंदी है और अंत जिद्दां अगला महीना 8 तरीक नूं भी आगे पूर्णमाशी आ रही है। पूरा महीना साढ़े 12 त्यौहारां ते फंक्शन ते चला जाता, बहुत ही बड़े फंक्शन इस महीने होंदे सनातन धर्म दे, हिंदू धर्म दे उत्ते जाकर। रही है मानता दी गल, तरीका थोड़ा जिहा तौर तरीका बदलिया, क्योंकि हुण मैं कह सकदा कि फास्ट हो गई दुनिया। तौर तरीका बदलिया, फास्ट हो गई है दुनिया
ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल हाँ बिल्कुल करते हैं। कल दिवाली का दिहाड़ा सी, पहले धनतेरस सी, पूजा आराधना अर्चा हुई, गड्डियां लईयां लोगों ने, कल दिवाली की पूजा करवाई हैगी। कई सवेर तो लेके शाम तक हर मंदिर के पंडित 2-2 4-4 पंडित है, 2-2 4-4 जगह गए है। सिर अज जो ग्रहण पै गया बिच आके, अज जिन्होंने जजमाना अं कहा होया कि जी घर के कोई लिक्विड समान है, जिदा दुध है, दही है, शहद है, घे है, खीर है, लिक्विड चीज़ हैगी है, तो वो जो कोई सब्जी बनी है, आटा गुन्निया होया रखा होया, वो ग्रहण तो शुरू होने तो पहला कुशा का एक एक टुकड़ा पा दिओ और ग्रहण खत्म होने तो बाद उन्होंने तुसी कुछ टुकड़े नूं चक के किते साफ जगह ते उन्होंने प्रवाह कर दिओ ताकि वो दूषित ना होवे और ग्रसित ना होवे ग्रहण दे विच। बिल्कुल ये सारी हिदायतां ने जिहड़ी धार्मिक पद्धर ते दित्तियां जांदियां ने और धार्मिक पद्धर ते मन्निया जांदा है कि लोकां नूं इन्हां दी पालना करनी चाहिए। पंडित जी, इस बार त्योहारां दे विचाले ग्रहण दा आना, दिवाली का त्यौहार सब तो वड्डा त्यौहार जिहड़ा साल दा मन्निया जांदा हिंदू भाईचारे दे विच, और उस तो बाद इक्को दम बाद ग्रहण का आना, हुण उस वजह करके ये भी कहा जा रहा है कि त्यौहार जिहड़े बाकी सीगे, जिहड़े दिवाली दे बिल्कुल नाल जुड़ के आंदे सीगे, वो एक एक दिन अगे पै गए ने। गोवर्धन पूजा की गल करिए, भाई दूज की गल करिए, तो एक एक दिन अगे चले गए ने। इसनूं किस तरीके असीं समझिए, ये चंगा है, संकेत है, या ये कुछ वखरे तरीके इसनूं समझिया जाए? इस तरह आप जद भी सूरज ग्रहण आया, जो चंद्र ग्रहण आया, लग 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 के ला के आया, तो पहला तो यह सोच लेना कि सानू कोई ना कोई योग बन रहा प्राकृतिक प्रकोप का, कोई ना कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाता, रब ना करे किस तरह होवे। लेकिन जल्दी जल्दी जो सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण आ जाते, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, जिस जिस इलाके के ज़्यादा प्रभावी होंगे, हावी होंगे है। कुछ देशों के घट है, कुछ थावां ते घट है, कुछ तो ज़्यादा है ना, उत्थे आले दुआले उस जगह ते प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं। ये वास्ते है कि ईश्वर का नाम जपो, सब दे कल्याण के लिए मांगना करो कि प्रभु हे ईश्वर तू सब नूं सुखी रखी ते खुश रखी। सब दी प्रार्थना करांगे तो आपां सारे उहदे विच आ जावांगे जा करके। बिल्कुल पंडित जी, एक सवाल होर कि लोग जिहड़ा हैगा हौली हौली जिवें क्योंकि हुण बहुते लोग इसनूं साइंटिफिक तरीके नाल भी वेखदे ने, विग्यानक नज़रिए नाल भी वेखदे ने कि ये सिर्फ एक खगोल विज्ञान की एक घटना हैगी है, जिसका नज़ारा लेना चाहिए, जिसनूं समझना चाहिए, जिसनूं साइंटिफिक तरीके नाल समझना चाहिए, और बाकी सारी मानतावां जिहड़ियां ने वो सिर्फ मिथ ने या कहानियां ने या सिर्फ ये कह लिया जाए कि बनाईयां हुईयां गल्लां ने, अजिहा कुछ नहीं हुंदा। उन्हां नूं किवें दस्सिया जाए कि ये जिहड़ा ग्रहण हैगा, सूरज ग्रहण हैगा, इसकी धार्मिक मानता असल दे विच किन्नी हैगी है? देखो, साइंस का एक सबजैक्ट एक प्रोफैशन चला जाता है कि वो अपने सबजैक्ट के अनुसार उन्होंने अपने स्टडी करते हैं, लेकिन घर बैठ के देखो तो वो भी हो सकता है कि किसी न किसी रूप के इनू मनते होणगे। तुसीं एक थाली कांसी की थाली लै लो, उन्हें सूरज की किरणों के बाहर देख लो और उहदे थोड़ा जिहा पा के दुध देख लो, दूजा तुसीं अंदर रख लो दुध कांसी थाली च पा के, उहदा स्वाद ते इहदा स्वाद थोड़ी देर के बाद घंटे 2 घंटे के बाद तुहानूं अपने आप नज़र आ जाएगा। एक एक चम्मच लैके देखो तो तुहानूं सूरज ग्रहण का पता लग जाएगा, तो उहदा पता लग जाएगा, तो तुसीं खुद अपने आप नाप सकते हो। इसी तरह चंद्र ग्रहण होएगा, रात को जो चंद्र ग्रहण लगा होगा, उन्होंने खीर तुसीं बाहर रख लो, दुध तांबे के कासे ते कोसे तांबे दे ना रखो, किसी होर स्टील के भांडे च रख लो, या चांदी के भांडे च खीर बाहर रख लो, और तुसीं अंदर भी चांदी के भांडे दे बर्तन के खीर रख लो। ग्रहण तो बाद तुसीं उहदा टेस्ट अलग अलग तुहानूं नज़र आएगा। ये प्राकृतिक दी हुई चीज़ां ना, साइंस ठीक है अपनी रिसर्च कर रही है, असीं उन्हां मान सम्मान करते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल साइंस का मान सम्मान तुसीं करदे हो ते नाल ही जिहड़ा असर जिहड़ा हैगा वो कितना किते दिखता है। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी लगातार मेरे नाल कुरुक्षेत्र दे विच ब्रह्म सरोवर ते मौजूद ने, उन्हां दे कोल भी असीं जावांगे, ब्रह्म सरोवर दीयां तस्वीरां भी असीं दिखा रहे हैं। अंकित, इस वक्त ब्रह्म सरोवर पर किस तरह की तस्वीरें, लोगों का आस्था का जो एक हुजूम जो देखने को मिल रहा है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं वहां पर, इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं अंकित? बिल्कुल आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कहीं ना कहीं हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और डुबकियां लगाई जा रही हैं। वो चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों,
कोई पूजा कर रहा है, तो कोई आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़ करके पूजा कर रहे हैं लोग, वहीं पानी में बैठ करके, वहीं सरोवर में बैठ करके और पूजा में लगे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक महत्व है तो उसी के नाते लोग यहाँ पहुंचे हैं। और केवल हरियाणा से नहीं, अभी हम बात कर रहे थे यूपी से लोग पहुंचे हैं, सहारनपुर से लोग पहुंचे हैं, दिल्ली से लोग पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आसपास में पंजाब से लोग पहुंच रहे हैं काफी संख्या के अंदर। तो सारे जो आसपास के स्टेट्स हैं वहां से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। और आज से ही लोग पहुंचने शुरू नहीं हुए हैं, कल रात से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे, क्योंकि दिवाली का पूजन करते ही लोग निकल पड़े थे घरों से, क्योंकि यहाँ पहुंचने में समय लगता है। यहाँ लग करके और फिर अपना धर्मशाला की व्यवस्था की है, रुके हैं और रात भर यहाँ रुकेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को भी यहाँ रुकेंगे और रात को रुक करके सुबह के फिर रवाना होंगे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की ओर से है वो व्यवस्था की गई है। तो लोगों की भी एक आस्था का केंद्र जो कुरुक्षेत्र का अपने आप में एक महत्व है, और अपने आप में महत्व है इसीलिए कुरुक्षेत्र में यहाँ लोग पहुंचते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र ही वो नगरी है, धर्म नगरी है, जहाँ गीता का ज्ञान दिया गया था, गीता का उपदेश दिया गया था पांडवों के लिए भी, और कहीं ना कहीं पूरी महाभारत काल के लिए एक कुरुक्षेत्र ऐसी नगरी है जो अपने आप में विशेष है, जिसका धार्मिक महत्व है। और उसी धार्मिक महत्व को बढ़ाने के लिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं जो यहाँ लोग पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि कहाँ से आए हैं आप? सर मैं कुरुक्षेत्र की निवासी हूँ, यहीं से हूँ मैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं जी। आप देखते हैं कि क्योंकि फिर आप यहीं के निवासी हैं, तो हर साल जब ये ग्रहण का मेला होता है, ग्रहण लगता है, तो इतनी ही संख्या में लोग पहुंचते हैं? जी, आज तो कुछ कम है संख्या, अदरवाइज पहले जब भी ये मेला लगता है तो और भी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। क्या महत्व है, आप क्योंकि कुरुक्षेत्र की रहने वाली है? जी, ब्रह्म सरोवर का जो महत्व है, यहाँ पर बैठकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो इसीलिए ये फेमस है। और वैसे भी ये माना जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण का मेला होता है तो यहाँ पर जितने भी हमारे होली जो आप कह सकते हो डिप्स हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पर लोग होली डिप लेने जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल की प्राप्ति होती है, और इंसान जो है आपका वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं। कि प्रशासन की ओर से भी कहीं ना कहीं पुख्ता प्रबंध है? जी, प्रशासन बहुत ही सशक्त रहता है इस मामले में। सारे सरोवर की सफाई की जाती है पहले, और उसमें फटकरी डाल के इसे बिल्कुल शुद्ध किया जाता है, ताकि जो लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं वो किसी भी प्रकार की जो स्किन की डिजीज है उससे वो दूर रह सके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गगन की यहीं के रहने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, तो और वो साफ तौर पर महत्व भी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने यहीं बैठ करके सृष्टि की रचना की थी, तो उस नाते से कहीं ना कहीं विशेष महत्व है। और यहाँ के स्नान के बाद जन्म मरण के जो एक चक्र होता है उससे मुक्ति मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष महत्व है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो लाखों लोग जो पूरे देश भर से कह सकते हैं कि वो यहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और अभी जब 4:27 से लेकर के 4:25 से लेकर के 5:37 तक जब पूरा ग्रहण का काल चलेगा और ग्रहण जब लगेगा उसके बाद 5:37 के बाद जो एक मोक्ष की जो डुबकी लगाई जाएगी सब श्रद्धालुओं के द्वारा, और मोक्ष की कहीं ना कहीं प्राप्ति के लिए वो लगेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित, मोक्ष की डुबकी लगाई जाएगी। पंडित सुभाष शर्मा जी भी लगातार साडे नाल मौजूद ने। पंडित जी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? जी जी, कोई हरिद्वार गया हो, कोई पहेवे गया होया, कोई कुरुक्षेत्र गया होया, जो नहीं चाह पाते, सब पास नहीं होता समय का, नहीं पहुँच पाते है, घर दे विच पानी दे बाथरूम ते जाके 2 चम्मच ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾਣ, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उतना ही फल मिलेगा। गंगा जल का जरूर स्पर्श करें, उसमें गंगा जल डालकर फिर पानी डालें, फिर उससे स्नान करें। बिल्कुल। पंडित जी, एक सवाल और, जो इस वक्त जैसे लोग बड़ी गिनती में दान पुण्य भी करते हैं, बाकी सब कर्म कांड जो हैं वो किए जाते हैं, ये जो ग्रहण का काल है और इसके बाद की जो तस्वीर है, इसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाता है, ग्रहण काल खत्म हो गया,
उस वक्त भी क्या अलग तरीके से कोई पूजा पाठ किया जाना चाहिए या कोई उसके लिए खास तैयारी की जानी चाहिए? ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਧਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਛਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ नहीं जाना। जी 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 बच्चों के लिए देखो, एक तो छुट्टी का दिन हैगा, 5-4 छुट्टियां शायद हर स्कूल के कॉलेज ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜਾਈਏ ਉਤਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਪੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਜੀ हाँ बुजुर्ग है, मैक्सिमम जो बुजुर्ग है कोई ना कोई दवाई जरूर लेंदा हैगा। कोशिश की जाए कि ग्रहण तो पहले ही उन्होंने रोटी पानी दिता जाए। अगर जे पिछ कोई दवाई का भी कोई ऐसा समय आ जाता है कि इतने बजे तो डॉक्टर ने किया हुआ है टीका लगना, वो आदमी ले सकता दवाई, क्योंकि सब तो पहला साडी सेहत है, बाकी काम बाद। बिल्कुल बिल्कुल ये सारी हिदायतां ने जिन्हां दा ख्याल जिहड़ा हैगा रखना चाहिए। और अंकित लगातार मेरे नाल मौजूद ने, अंकित भी लगातार कुरुक्षेत्र तो तस्वीरां दिखा रहे ने। अंकित दे कोल एक बार फिर रुक करांगे। अंकित, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे थे, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के शहर ही नहीं, बाहर से भी, दिल्ली से, यूपी से लोग जगह जगह से आए हैं स्नान करने के लिए। और आज का दिन तो बेहद खास रहने वाला है। अगर बाकी जगहों की बात करें अंकित, तो जगह जगह पर कई ऐसे धार्मिक संस्थान या ये कह लिया जाए कि संगठन होते हैं जो स्नान के लिए खास तौर से आते हैं। उसमें अखाड़ों की बात की जाए या उस तरह की, क्या वो तस्वीरें भी इस वक्त ब्रह्म सरोवर पर दिखाई दे रही हैं? क्या उस तरह से जो अलग अलग संस्थानों के प्रतिनिधि होते हैं, धार्मिक संस्थानों के, क्या वो भी कहीं नजर आए हैं ब्रह्म सरोवर पर अंकित? बिल्कुल गगन, मैंने जैसे बताया कि अलग अलग घाट बनाए गए हैं और उनके लिए अलग घाट बनाया गया है। अभी जो है हम आम जो लोग आए हैं उस घाट के ऊपर मौजूद हैं। आम महिलाएं हैं, आम पुरुष हैं, आम बच्चे हैं जो स्नान कर रहे हैं। आम आदमियों के बीच में, जो एक जनरल पब्लिक है उसके बीच में हम हैं। ऐसे ही वीआईपी घाट बनाया गया है, वहाँ एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, वो आकर के स्नान करेंगे, वो आकर के पूजा अर्चना करेंगे, तो उनके लिए अलग घाट बनाया गया है। ऐसे ही साधु संत जो आए हैं, जो आप अखाड़ों की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जो साधु संत आते हैं तो उनके लिए अलग घाट बनाया गया है, तो वो वहाँ अच्छे से स्नान कर सकें, शांति से कोई दिक्कत ना हो उनके लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और उसके व्यवस्था का ही हिस्सा है कि अलग अलग घाट बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, महिलाओं की जगह पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां सबको रोक लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से प्रशासन जहां दुष्ट चरुस्त है और वहां पूरी तरह से लोग भी अपनी स्नान करने के लिए आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। और अभी जब ग्रहण का काल शुरू होगा तो कहीं ना कहीं पूजा अर्चना, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ महिलाएं अभी भी गीत गा रही हैं और आप देख सकते हैं कि वो एक श्रद्धा का हिस्सा है कि आप देखिए कि महिलाएं पहुंच चुकी हैं और पहुंच करके अभी भी इससे ही गीत गाने शुरू कर दिए हैं, कहीं ना कहीं भजन गाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रभु को याद किया जा रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि सूर्य में ग्रहण लगता है, जो सूर्य हमें हरदम रोशनी देता है, हमारा दिन बनाता है, तो आज उसमें ग्रहण लग रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक ये भावुक पल है और भावुक पल के नाते ही अब सारे जो आम जन है, आम आदमी है, हर एक विशेष आदमी है, सब लोग उस सूरज देवता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आज सूरज देवता जो है वो कष्ट के अंदर है, तो उसके कष्ट को मिटाने के लिए और कहीं ना कहीं प्रभु से याचना की जा
जा रही है, पूजा पाठ किए जा रहे हैं, दान दक्षिणा दी जा रही है, तो उसका कष्ट कम करने की कोशिश की जा रही है। तो अपने आप में एक बड़ा महत्व हो जाता है और इसीलिए यही कारण है, वरना हम 10 लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करें तो 10 लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ लाखों लोग अपनी मर्जी से, अपने खर्चे से चल करके वो कहें कि कहीं कहीं यूपी से कहें, पंजाब से कहें, हिमाचल से कहें, हरियाणा से, दिल्ली से, सब जगह से पहुंच रहे हैं। तो वो इसी कारण से है कि एक अपने आप में भक्ति का महत्व है और आज भी जिस तरह से भक्ति जिंदा है तो वो इन्हीं श्रद्धालुओं के दम के ऊपर जिंदा है कि वो श्रद्धालु हैं और श्रद्धालु भक्ति करके उनको पता है कि आज जब बिल्कुल सूरज अंकित, के ऊपर कोई इसी कठिनाई वजह आई से है, आज का दिन बेहद खास हो जाता है। बिल्कुल इसी वजह से आज का दिन खास हो जाता है क्योंकि सूर्य जो पूरी सृष्टि का आधार जिसको माना जाता है उसके लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, आपका भी ते पंडित सुभाष शर्मा जी थोड़ा ही बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गलबात करने दे लई। दो लोकां नाल सी गल कर रहे सी कि पंडित सुभाष शर्मा जिन्हां ने धार्मिक अहमियत दसी और अंकित मेरे सहयोगी जिहड़े लगातार अपडेट दे रहे हैं ब्रह्म सरोवर तो वो भी तस्वीरां दिखा रहे सी कि छोटे जिहा ब्रेक ਲਈ रुकांगे, ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।